Manager for Indian subcontinent and Middle East countries for DCI India Limited. Uh, Thank you, Rajat, for honoring our invitation and joining the webinar. Thank We you, also, Aditya. Thanks for the introduction. yep. So we also have about 7 to 8 attendees. We all know that the pipeline projects which we execute using the HDD technology, we need to use a lot of drilling fluids. So when it comes to drilling fluids, it is not only the use of water or just the bentonite. There is the drilling fluid has meaning much beyond that, and they play a very important role when it comes to execution or successful execution of larger diameter pipeline projects. So we thought of making this webinar, having this webinar, and kind of have customers understand and create awareness about how the drilling fluid, how the mixing and handling of it actually makes a lot of differences for the successful implementation of the HDD project. We also had Mr. Niranjan Swarup, who is Director General of Indian Society for Trenchless Technology. He was supposed to join us, but unfortunately, he is delayed by 15-20 minutes. So, as of now, we will get going. Uh, to start with, I will have Rajat basically to initiate this discussion. Although he is from the DCI and takes care of most of the locating system, he has been involved in this field for quite some time now, if I'm not wrong, more than 10 to 15 years. So Yeah. he does understands the importance of the new technology as well as the drilling fluids, how they play important role. So Rajat, would you throw some light on how drilling fluids are important when it comes to the execution of HDD project? Sure. Thank you. Thank you, Aditya. Okay, let me introduce myself first. I am Rajat Mathur. I am a sales and service manager for DCI India. Now, just a brief introduction about DCI. What DCI does is like, we are the manufacturer of the detection system, the locating system, by the brand name Digitrack. And we have been in this field for almost like 30 years now. We started off in 1991, and we've been continuing great in across the world and selling these locating systems. Okay. So this is a very interesting topic. I mean, and I would also like to mention this is a very uncommon topic. I mean, nobody talks about the drilling fluid, the mud, and the mud mixing system. So people primarily know, all the contractors primarily know what a HDD rig is and what a locating system is. But if you talk to them about mixing system, I would say 90% of people do not know what a mud mixing system is and what is the utility and the importance of that mud mixing system, right? So it's like people who have been into the pipeline business, or who have been installing pipelines since a while now. They know the importance. Also, the certain stratas, wherever you have to install ducts or electric pipes, this mud mixing system is very, very essential. It is very, very important, and I think people now have started realizing, because there's an immediate shift from the duct to the pipeline installations now. So now everybody has started realizing the importance, and the importance of using a mud mixing unit or a drilling fluid unit. So just a trivia, I mean, just a question I would like to throw to you all. Uh, Anybody know what why is it called a bentonite? I mean, everybody is aware of this word bentonite. So it's just a trivia. What bentonite is basically? Anybody can, just an open question to everybody. Okay, so I'll just reply to all. I was just reading it, a few days back, and I got to understand that the first clay was found around 1890 near a place called Fort Benton in Wyoming, which is a U.S. state. So that's how bentonite got its name, bentonite, from the place Fort Benton. Now, how it helps us in locating is like, uh, what it actually does. When there's fluid, fluid in the downhole, what we have a transmitter called a fluid pressure transmitter, which helps you to read data under the ground. Now, what an advantage of using this transmitter is that it reduces your risk, it reduces your cost, and it makes the drilling very efficient. Um,
what happens when you actually do not know the fluid pressure which is under the ground or in the bore. It's like it has environmental impact, it has legal impacts, it has higher risk, it has social costs. So it is very, very important to know the real-time downhole pressure data when you are actually drilling, uh, uh, you know and especially in a pipeline job. So just to begin with, what exactly is a drilling fluid? Now, most people call it a drilling fluid. It's basically mud. In a technical language, in an HTTP language, it is called drilling mud. We call it mud. Why it is called mud? Because it's a mixture of water and clay and certain chemicals. Now, as far as I'm concerned, as DCI concerned about this drilling fluid, how it helps. I'm just is that talking about the basic functions and functionalities of this fluid, that it helps to lubricate and create a lubrication, and it keeps the drill string cold. Now what happens is our transmitters, they are designed to a certain to withstand a certain temperature. Now we are drilling, there's a lot of friction which creates heat, and it gets the temperature increased, and our transmitters are adaptable up to a certain temperature, beyond which it will go bad. So it is very, very important to keep the housing and the transmitter cool. So that's where these drilling fluids help us a lot. It also helps to stabilize the borehole, because there's a lot of pressure from the bore, so it helps you to stabilize the bore also. It also makes the drill string buoyant, which is a very, very important factor of a drilling fluid. That it keeps the drilling fluid buoyant. It doesn't make it settle down on the ground or at the bottom of the bore. It keeps it buoyant, which is very, very important while you're drilling. In pipeline, yes, very, very, very important. Also, I would like to talk about a little about what are the properties of this mud. There are three important factors which you need to keep in mind. There is viscosity, there is density, now there is the chemical composition, there is the fluid loss control. So everything has to be taken into consideration, that how important is this fluid mud is. And then obviously, depending on the ground conditions and depending on the job size that you have or the product you have installing, it is important to understand and use the correct formation of the mud and the mud mixing units. Now it's quite popular. The mud mixing is quite popular now. There are people who have been manufacturing very specific characterized mud mixing units. So I hope, over this webinar, we'll understand how important this use of fluid system is to everybody. And if anybody has a question related to Digitrack locating and how helpful it is in this whole application, please ask me, or after, if you have some time after the webinar, we can discuss about it. Right. Thank you, Over to Rajat. Aditya. Thank you. Yep. Thanks. So we do have a request from one of the attendees that his site crew is also listening to this, and he would want us to translate in Hindi. So, Mr. Suman, we will try to uh, talk in Hindi as much as possible, but some of the concepts, yes, they are better understandable in English as well. We will, like Tariq, who is my colleague, who's gonna take over from now. He will be trying to talk in Hindi as well. So, Tariq, to sum up what Rajat had said, I would want you to highlight like these drilling fluids. Why do we use them? Rajat also said about what exactly are the combinations of proper drilling fluid. What are the properties? So, would you please talk about that? Yeah. Okay. Very well said, Rajat. Before I start, I will give a brief introduction of myself. Tariq, your voice is echoing. Tariq, your voice is echoing. Am I clear now? Not yet. Is it clear now? Maybe not use the headphones. I mean, just talk on the mic probably. Okay. Is it clear now? There's still some disturbance. I think there is some network issue like this. Sorry about that. माफी चाहूंगा उसके लिए कि थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है.
I am Sai Salwan, working for Monday for last now 17 and a half years. I am currently looking after northern and eastern part of India. As now as I'm also responsible for the pipeline specialist for the entire nation. Tariq, do you mind disconnecting and Okay. because I'm also hearing my voice from your computer. So, sorry for the interruption, everyone. There seems to be some issue with Tariq's connection. Meanwhile, Mr. Niranjan Swarup, who is Director General of Indian Society for Trenchless Technology, he has joined us as a panelist as well. Welcome, Mr. Swarup. Hello. Yeah. Yeah. Thank you. So, sir, while Tariq is joining back, I would want you to talk about how Indian Society for Trenchless Technology, you have published a lot of publications about what are the codes of practices for execution of successful drilling projects and some of the publications regarding the drilling fluids as well. I understand that one of the participants requested for vernacular. So will Hindi be all right for everybody? I guess the Hindi should be fine. Yes. Yeah. So I'll kind of try to mix that with Hindi and English so that Ji. people can get, especially the people who are at the front line, who are doing the basic operations, they are able to understand. Right. तो असली मुद्दा ये है कि जब आप ड्रिल करते हैं, when you're drilling, you are kind of exerting certain forces on the ground, और जब वो आप दबाव लगा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको उसको स्मूथिंग करने के लिए या उसको जिसको बोला जाए लुब्रिकेट करने के लिए कुछ फ्लूइड की जरूरत है। आपको उस फ्लूइड की जरूरत है इसलिए कि जो आप काट के निकालें उसको आप बाहर ला सकें, इफ यू कैन गेट इट आउट। आप पानी से इस काम को करते हैं, बट पानी के अंदर वो विस्कोसिटी नहीं है या वो उसको रोकने का जरिया नहीं है। देयरफॉर व्हाट यू रिक्वायर इज समथिंग जिसको आपको चाहिए, यू नीड समथिंग विच कैन एक्चुअली काइंड ऑफ आपको ये हेल्प कर सके कि आप सामान निकाल के आ सकें वहां से बाहर। और ये सामान लाने के लिए ड्रिलिंग फ्लूइड एक बहुत जरूरी चीज है जो कि आपको हेल्प करती है। इफ यू आर यूजिंग ड्रिलिंग फ्लूइड, नथिंग लाइक इट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको आप इस्तेमाल करना जरूर शुरू करें, क्योंकि पानी से अगर आप ड्रिल कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्पॉइल इट। नाउ एज फार एज INDSTT इज कंसर्न, हम लोगों ने इस चीज को इस तरीके से लिया है कि एक काम को करने के लिए ऑपरेटर को कुछ स्किल्स आनी चाहिए, और वो स्किल्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्पेशली HDD में, उसके लिए आपको ड्रिलिंग फ्लूइड को यूज बनाना, उसको इस्तेमाल करना और पहचानना। व्हेन यू ड्रिलिंग कटिंग से कमिंग आउट, अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग आउट, ये अगर आप समझ सकेंगे तो आप उसके हिसाब से अपने काम को संभाल सकते हैं। और इसके लिए INDSTT ने एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पब्लिश किया हुआ है जिसको VQC बोलते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है INDSTT.com, आप वहां जाके देख सकते हैं इसे। एंड वंस यू गो थ्रू इट, इट विल बी क्लियर जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको बोला जाए ड्रिलिंग फ्लूइड्स के बारे में, वो आपको समझ में आए। यकीन मानिए अगर आप ड्रिलिंग फ्लूइड ठीक से इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी मशीन की जिंदगी बढ़ाते हैं। आप अदरवाइज अपनी मशीन को बहुत जल्दी खराब करेंगे, जो शायद 5000 घंटे चलनी थी वो आपकी 3000 घंटों में खराब हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने वोकेशनल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें कि बहुत सारी चीजें ये एक्सप्लेन की हुई हैं कि क्या क्या आपको करना है। दैट इज बेसिकली कैसे प्लान करेंगे, कैसे आप चीजों को इंतजाम करेंगे। अब ड्रिलिंग फ्लूइड के व्यू पॉइंट से अगर आप सोचें तो ड्रिलिंग फ्लूइड जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाहर से निकल के आएगा, और जब वो आएगा, जब वो निकल के आएगा तो अपने साथ वो मलबा लाएगा। उस मलबे को आप कैसे हैंडल करें। मैं जानता हूं कि जो मशीन आप यूज करेंगे, HDD रिग यूज कर रहे हैं, इनकेस इफ यूजिंग वर्मियर रिग,
you would have some kind of attachment of fixtures. I believe Tariq or other on the panel would be able to explain. वो बता पाएंगे कि और क्या क्या चीजें वो ऑफर करते हैं। लेकिन ऐसी चीजों की जरूरत आपकी मशीन में हो, और अगर आपकी मशीन कहीं और किसी और कंपनी की है और उसमें नहीं लग रही हुई हैं चीजें, आई वुड सजेस्ट लुक फॉर दोज इक्विपमेंट एंड गेट देम इंस्टॉल्ड। सबसे जरूरी चीज है कि ये समझ पैदा करना कि किस तरीके से आप ड्रिलिंग फ्लूइड को तैयार करें अपने लिए। अगर आप अपने लिए ड्रिलिंग फ्लूइड तैयार करेंगे तो आपका काम बहुत स्मूथ होगा। एंड बिलीव यू मी, इट विल चेंज फ्रॉम साइट टू साइट। आपकी जो साइट है, उसकी जो मिट्टी है, जो उसकी जो भी स्ट्राटा है, उसके हिसाब से आपको ड्रिलिंग फ्लूइड को बदलना जरूरी है। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़े एसडीडी के ड्रिलर बने, एक बहुत बड़े एसडीडी के कॉन्ट्रैक्टर बने, तो ड्रिलिंग फ्लूइड एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगर आपको ग्रो करना है, बड़े बनना है, join us, start working towards the scientific way of the directional drilling. Otherwise तो बोगी मार के भी लोग जमीन में छेद करते हैं। So I think that is what I wanted to convey. I'll give it to Aditya now. Aditya, you can take it over. Yeah, thank you, sir. So Tariq seems to have joined us back again. So Tariq, you can start with your PPT. Before I start, am I audible and clear now? Yes, very much clear now. Okay, thank you. A very good morning to everyone, and Niranjan ji, very well said. आपने बहुत अच्छा बोला, और आपकी इसी एक्सपीरियंस की लगता है हम सबको कमी है, और वही एक्सपीरियंस हम सबके काम आएगा एक सक्सेसफुल पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे कि एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। मैं जो मेन पॉइंट्स उनको कोशिश करूंगा हिंदी में एक्सप्लेन करने की। हमारे जो भाई लोग हैं जो फील्ड पे रहते हैं वो समझ सकें और उसको अपने काम में ला सकें। To start with, as everyone has rightly said, for a successful pipeline installation, machine tooling is not the only thing which is required. A successful drilling mud mixing system along with the real drilling fluid mix with a respective soil condition is necessary. किसी भी सक्सेसफुल और कामयाब पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के लिए हमको सिर्फ मशीन टूलिंग और दूसरे औजारों की जरूरत के साथ साथ एक अच्छे मिक्सिंग और सिस्टम और एक ड्रिलिंग फ्लूइड जो एडिटिव है हमारे, जैसे बेंटोनाइट और पॉलीमर और बहुत सारे होते हैं जो कि हर ग्राउंड कंडीशन के लिए अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ग्राउंड कंडीशन के लिए एक मिक्स हमने बना लिया कि इतना बेंटोनाइट लगेगा जी, इतना पॉलीमर लगेगा और वो हर जगह कामयाब होगा। वो नहीं, रॉक में अलग होगा, सॉइल में अलग होगा, सैंड में अलग होगा, तो उसी हिसाब से हमारा एक मिक्स होता है। यही हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि एक आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे कि हम लोगों का जो एक उद्देश्य है कि एक पाइपलाइन जो एक इंस्टॉल हो रहा है वो एक सक्सेसफुली हो जाए और हमारी इसके साथ ही साथ हमारी मशीन की भी अच्छी देखभाल हो और हम लोग हर जगह कामयाब हों। ये नहीं कि हमारे शॉट्स 2-3 फेलियर के बाद 2-3 बार फेल होने के बाद हम उसको पाइपलाइन डाल रहे हैं। ना सिर्फ इसमें हमारा पैसा जा रहा है बल्कि टाइम जा रहा है, और सबसे बड़ी बात किसी भी एक ड्रिलिंग कंपनी का नाम। To start with, why we need a proper mix of drilling fluid. So number one, as Rajat has also said, that we need to stabilize bore hole. अभी अब हम लोगों का जो मुद्दा है वो ये है कि हम जब एक बोर कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ काट रहे हैं और मटेरियल जो निकाल नहीं रहे हैं तो वो क्या है, सिर्फ हम काट रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि एक होल बनाना जमीन में, और उसके लिए जो भी हम कटेंगे उसको बाहर निकालेंगे। उसके लिए हमारे ड्रिलिंग फ्लूइड बहुत जरूरी है। प्लस अगर हम सिर्फ पानी से ड्रिल करेंगे तो जो बाहर की मिट्टी है जो होल के अलावा
वो हमारे होल में आ जाएगी और वो हम कभी भी हम उसको होल पूरा एक जो हम सोच रहे हैं कि एक फॉर एग्जांपल 16 इंच का बोर बनाना है, होल बनाना है, तो वो 16 इंच का होता ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने सिर्फ पानी से ड्रिल किया या हमने सही मात्रा में बेंटोनाइट ऐड नहीं किया या पॉलीमर ऐड नहीं किया, तो वो एक जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है बेंटोनाइट और पॉलीमर जो इसका काम है, तो वो अपना काम नहीं ठीक से कर पाएगा और जो कटिंग बोर होल के आसपास की मिट्टी है वो उसके अंदर बैठ जाएगी और होल हमारा पूरा 16 इंच का नहीं होगा। हमें लग रहा है कि हमने 16 इंच का रीमर चलाया, हमारा होल 16 इंच है, लेकिन वो हो सकता है 14 इंच हो सकता है 12 इंच ही हो कहीं कहीं पे पूरे शॉर्ट लेंथ के दौरान। तो इसलिए हमको ड्रिलिंग फ्लूइड जरूरी है। फिर Rajat said that it lubricates and cool the not only drill bit but also the transmitter. तो जो हमारा साउंड है साउंड हाउसिंग के अंदर या पायलट के अंदर हमारा जो साउंड है वो क्या है, एक इस टेम्परेचर तक झेल सकता है, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो साउंड जलने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। जब वो चांसेस बढ़ जाएंगे तो हमारा जो साउंड एक अच्छा खासा कीमती सामान है वो खराब हो जाएगा जल्दी, और वो अपनी लाइफ आप उसकी लाइफ नहीं यूज कर पाएंगे उतनी लाइफ तक के। और मेन जो सबसे बड़ा हमारा जो एक फैक्टर है कि हमको होल बनाना है और उसके अंदर जो भी हम काट रहे हैं वो बाहर आ जाए होल के, उसके लिए ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करते हैं। सो ड्रिलिंग फ्लूइड रिमूव्स कटिंग्स फ्रॉम द होल। Other factors is like it reduces filtrate invasion or also maintain suspension of drilling cuttings. तो जो हमारा ड्रिलिंग फ्लूइड हम जो पंप कर रहे हैं मशीन के थ्रू होल के अंदर, तो एक सस्पेंशन यानी क्रिएट करता है जिसमें हमारी जो कटिंग है, जो हम मटेरियल काट रहे हैं, चाहे वो मिट्टी हो रॉक हो, वो उसके अंदर तैरना चाहिए। ये नहीं कि वो बोर के नीचे जो है वो बैठ गया, सेटल हो गया। अगर वो सेटल हो गया तो हमारा बोर उतने इंच का नहीं बना जितना हम सोच रहे थे कि उतना इंच का बनाना था। और सबसे बड़ी बात है कि हमको एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा पूरे बोरहोल के दरमियान। सो इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूइड। तो हम जब ड्रिलिंग फ्लूइड प्रिपेयर करेंगे, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, क्या क्या जरूरत है उस। तो सबसे पहले जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे भाई लोग, मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ये इस पे ध्यान उतना नहीं देते हैं। तो जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज मान लीजिए और फिजिकल प्रॉपर्टीज मान लीजिए, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका पीएच टेस्ट करना है, क्योंकि अगर पीएच पानी में एसिड की मात्रा हुई, वो पानी थोड़ा सा एसिडिक हुआ, जो हम बेंटोनाइट मिक्स करेंगे वो स्वेल नहीं करेगा, और जब वो स्वेल नहीं करेगा तो हम अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि वो पानी में अच्छे से मिक्स हो रहा है, और हमने पता चला जहां पे हमको 4 बैग डालने थे हमने उसको 8 बैग डाल दिए, तब भी हमको वो रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है अगर हम पानी को ट्रीट कर दें, जैसे अगर मान लीजिए हमें पता चलता है कि इसका पीएच 5 या 6 है, तो थोड़ा एसिडिक है, तो जब वो एसिडिक होगा तो हमको उसको ट्रीट करके बेसिक बनाना है, क्योंकि जो स्वेल करता है यानी कि फूलता है, उसको उसके लिए उसके पीएच की जरूरत जो होती है वो है 8 से लेकर के 9 के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आगे की स्लाइड्स में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बता देते हैं कि हम सोडा ऐश डालेंगे, फिर उसके बाद पीएच हम टेस्ट करेंगे। अगर वो 8-9 हो गया पानी का, तो वो हमारे लिए तैयार है कि हम उसमें अब बेंटोनाइट डाल करके मिक्सिंग स्टार्ट करें। फिर दूसरी बड़ी बात हमें जो चाहिए वो है एक सही मिक्सिंग यूनिट की। हो सकता है हमारी मशीन की कैपेसिटी 750 लीटर पर मिनट की हो, और हमारे पास इतना बड़ा मिक्सिंग सिस्टम ही नहीं है कि हम जब वो स्टार्ट करें तो 1 या 2 रॉड गए और पता चला हमारा टैंक खाली हो गया, या मिक्सिंग की जो स्पीड है वो हमारे पंपिंग की स्पीड से मैच नहीं कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम
ना सिर्फ पानी वेस्ट कर रहे हैं बल्कि हमने अपना बेंटोनाइट भी वेस्ट किया, क्योंकि वो प्रॉपर मिक्स ही नहीं हो रहा है और हम सिर्फ एक तरह से पानी और बेंटोनाइट सीधे सीधे होल में भेज रहे हैं। वो आगे जाके क्या नुकसान होते हैं उसके, कि जब अगर बेंटोनाइट स्वेल नहीं किया होल में और मिक्सिंग सिस्टम में और होल में जाकर के स्वेल करेगा, तो भी हमारा जो होल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, हम लोग को हर मिक्सिंग के दौरान साइड पे ड्रिलिंग फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हमेशा मॉनिटर या चेक करना चाहिए, जैसे कि मड वेट है, विस्कोसिटी है, पीएच मैंने बताया था, सैंड कंटेंट और हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके लिए हमारे कुछ छोटे छोटे किट्स आती हैं, कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, जिसकी फोटोज मैं अभी अपने प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पानी पे ध्यान देते हैं कि कौन सा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसमें बहुत सारी अशुद्धियां या कंटेमिनेंट्स हैं तो वो पानी हमारे लिए बेकार है। इसमें क्या क्या ज्यादातर अशुद्धियां होती हैं कि कैल्शियम कंटेंट्स होते हैं, तो क्या होता है, पानी हमारा हार्ड होता है यानी या खारा होता है। अगर पानी खारा है तो भी हमारा बेंटोनाइट उतना अच्छा मिक्स नहीं होगा, या क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो भी हमारे पानी में अगर क्लोरीन है या क्लोराइड सॉल्ट्स हैं तो भी बेंटोनाइट उतना इफेक्टिव नहीं होगा और कुछ पॉलीमर्स भी उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले ये सारी चीजें चेक करेंगे। अगर हमारी कैल्शियम को तो हम ट्रीट कर सकते हैं, क्लोरीन या क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो हम उसको पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा सोर्स ढूंढेंगे उस पानी के लिए। तो कैल्शियम को अगर मात्रा में है, यानी हमारे जो ड्रिलिंग फ्लूइड के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर हमें कैल्शियम ज्यादा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सोडा ऐश डालेंगे। अभी हमारा जो एक हार्डनेस का लेवल है या पीएच का लेवल है, उसके हिसाब से ये मैंने एक सजेशन दिया हुआ है कि 600 ग्राम से लेकर के 2.5 किलो पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमें डालना है उस मात्रा में। ये मात्रा भी हमें बहुत जरूरी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम सोच रहे थे कि अगर हमने सही ऐसे ही डाला और वो पानी ट्रीट हो गया, लेकिन अगर हमने सही मात्रा में नहीं डाला तो पानी ट्रीट नहीं होगा। तो फिर वही होगा कि हम एक विस्कोसिटी लेवल को अचीव करने के लिए या एक उसकी जो जेल स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए ज्यादा बेंटोनाइट यूज कर रहे हैं, वो भी हमारे नुकसान है, क्योंकि हमारा वो पैसा जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। और जैसे मैंने बोला था कि क्लोराइड या क्लोरीन ज्यादा है तो वो पानी इस्तेमाल ना करें और दूसरा पानी का सोर्स तलाश करें। Tariq, I would just like to add just add one more thing कि Yep. कोई भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करा लें, बिकॉज आजकल क्या होता है कि द सॉइल कंडीशन Rajat, I'm covering that in my later ओके slides. ओके ओके फाइन फाइन या ठीक है। So what are the essentials, मतलब क्या क्या हमारे लिए जरूरी है एक मिक्सिंग के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा पानी इस्तेमाल करना है उसमें कंटेमिनेंट नहीं होने चाहिए, और फिर जो हम बेंटोनाइट यूज करेंगे उसके शेयरिंग एक टर्म है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि बेंटोनाइट को के जो मॉलिक्यूल अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो हमारे ताश के पत्ते की गड्डी की तरह होते हैं। उसको अगर हम शेयर नहीं देंगे, यानी अच्छी एजिटेशन नहीं है मिक्सिंग यूनिट पे, तो वो एक तरह से एक लम्फ ही रहेंगे पानी के, एक यानी कि गुठली बनी रहेगी बेंटोनाइट की, और वो सही से स्वेल होकर के नहीं बने, तो वो हमारे काम की नहीं है। अगर हम ताश के पत्तों को अलग कर देंगे तो वो हमारा अच्छे से स्वेल होगा, और जब वो स्वेल होगा तो हमारा एक तो वो फिल्टर केक फॉर्मेशन बनेगा, जिससे कि हमारा वो होल स्टेबलाइज होगा। फिर पॉलीमर्स जो है उनके लिए भी उनको एक फूलने के लिए हाइड्रेट यानी पानी उनको अब्सॉर्ब करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमने पॉलीमर का बैग टंकी में डाला और पंप कर दिया,
उसके लिए भी हमको अच्छे से उसको वैलिडेट मिक्स करके और थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम, जिस काम के लिए है उसको करने के लिए वो लोग हाइड्रेट हो जाए। अगर हाइड्रेट नहीं होते हैं, यानी कि वो फूलते नहीं है, तो वो सही से काम नहीं करेंगे और एक अच्छी जेल स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी बात हमारे भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए जो फील्ड पे है, साइड पे, एक सबका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। अगर वो ऑर्डर हम फॉलो नहीं करेंगे तो भी हमको जो हमने चाहा है कि ड्रिलिंग फ्लूइड ऐसा होना चाहिए, वो उस तरह का स्टैंडर्ड, उस तरह का मिक्स हमको वो नहीं मिलेगा। Tariq, तो सबसे पहले uh, sorry to disturb you. I just wanted to know if all the attendees are able to see the current slide, mixing essentials. Because No, only the first slide is visible. oh, okay. Because I can see it on my laptop. Tariq, are you able to see it, or can you Yeah. change it from your laptop? are you able to see mine? Aditya, it's still on the mixing and handling of drilling fluid, Tariq Salman. I don't know whether everybody else Oh, is okay. muted. I just got the feedback from Suman as well that he's also not able to see. Tariq, are you sharing the content? Yes. Huh. Because I can see that it is, I am able to view it. I can get the viewing notification as well. I thought everybody is able to view it. Can you reshare it one more time? Like, Yeah. that will be easy for people to follow what we are talking about. Okay, is all the pages visible? Still the first page. No, it's not. Wait, Tariq, maybe you can stop sharing. I will try to share it. Sure. Okay, we need to share our screen with the participant. Are you guys seeing it or no? Hello? I guess it will have to be done from your end as well, only, I guess. Because No, and I think I'm sharing it. you will have to share your screen as well, and not just the file. Once you share the file, you will have to go to share your screen as well. Anyways, I mean, meanwhile, you can try to continue, Tariq, while you're doing with that. Wait a minute, let me
ठीक है। Now, Yeah, I'm seeing the screen, the first screen now. You will have to share your screen. Tariq, you continue. We can yeah, next. ओके, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, कुछ ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत काम की है कि हम इतने दूर दूर बैठे भी ये देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ग्लिचेस कुछ हो जाता है जिससे कि हम शेयर नहीं कर पाते। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जब तक हमारे कलीग वर्कआउट कर रहे हैं कि ये शेयर हो जाए, मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर इन केस अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हम लोग आपको शेयर कर देंगे उसके बाद। तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक एडिशन का एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। जब ये सीक्वेंस Yeah, Tariq, we can see your screen now. So you will have या to आई एम share ट्राइंग दैट। the file, I guess. इज इट क्लियर नाउ? Yeah, I can see इज the इट people विजिबल? proper mixing of the drilling fluid slide. ओके, कैन यू ऑर्डर ऑफ एडिशन? एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले हमको क्या मिक्स करना है पानी में, फिर क्या मिक्स करना है, फिर क्या मिक्स करना है। वो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले जो पानी में मिक्स करना होगा वो एक सोडा ऐश है, जिसको, और मैं साफ बोल दूं कि यहाँ पे लोगों को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कॉस्टिक सोडा सोडा ऐश नहीं है। कॉस्टिक सोडा को यहाँ नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। जो हमारे लेबर हैं जो मिक्स करेंगे, अगर वो गलती से भी कॉस्टिक सोडा और पानी के साथ में करेंगे तो उनके हाथ जलेंगे, जो बर्न्स होंगे वो एक्सीडेंट्स होंगे। तो इसलिए हमेशा एक इंडस्ट्रियल सोडा ऐश हमको मंगाना पड़ेगा और वो मिलाना पड़ेगा पानी। फिर Tariq, जब are हमने you there? सोडा ऐश मिला लिया है, उसके बाद हमें बेंटोनाइट मिक्स करना You're है। not audible, Tariq. ये मिक्स करना है तो बेंटोनाइट को हमें पूरा बैग एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। उसके बाद हमें जो नंबर 3 पे चीज डालना है अगर, तो वो है पॉलीमर। तो पॉलीमर में भी अगर हमारे पास ड्राई पॉलीमर है तो पहले ड्राई डालेंगे, और लिक्विड पॉलीमर है तो फिर लिक्विड डालेंगे। उसके बाद कोई अगर सर्फेक्टेंस डालना है ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से, तो हमें सर्फेक्टेंस डालने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा मैं समराइज या रिकैप कर बोलता हूँ कि सबसे पहले हमको मिक्सिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, बेंटोनाइट के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो हमें सही मात्रा में और सही पानी चाहिए। फिर उसको शेयर करना है, यानी कि उस मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था ताश के पत्तों का, तो वो ताश के पत्ते हमें अलग करने के लिए एजिटेशन चाहिए। तो मिक्सिंग यूनिट में प्रॉपर एजिटेशन या
अच्छा घुमाव सर्कुलेशन बहुत जरूरी है पानी का, जिससे कि वो हम बेंटोनाइट के मॉलिक्यूल्स को अलग कर पाएंगे। जब वो एक एक मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो ही वो फूल करके स्वेल करके एक अपना जो उनका काम है, जो जिसके लिए उनको डिजाइन हमने इस्तेमाल करना है, वो काम कर पाएंगे। और थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि बैग पानी में डाला और हमने उसको पंप कर दिया। थोड़ी देर हमें डिपेंड कि कितना हमने क्वांटिटी में पानी है और कितने क्वांटिटी में बेंटोनाइट है। तो थोड़े आधे घंटे से लेकर के कई केसेस में 1 घंटे तक हमको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको पंप करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला था, जब हम मिक्स ड्राई पॉलीमर्स डाल रहे हैं तो धीरे धीरे डालना है। ये नहीं कि पूरा बैग हमने, चाहे वो बेंटोनाइट का हो या पॉलीमर का, एक साथ डालना है। इससे क्या होगा कि अगर हमने धीरे धीरे डाला है तो वो पूरे टैंक में फैल जाएगा, डिस्पर्स कर जाएगा पॉलीमर। जब वो पूरे टैंक में डिस्पर्स हो जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा बेंटोनाइट के साथ, तभी वो अपना काम कर पाएगा। नहीं तो पता चला कि आधे में ठीक से पहुंचा और हमने उसको पंप कर दिया और आधा टैंक में पॉलीमर पहुंचा ही नहीं था और हमने ऐसे ही पंप कर दिया, तो वो पैसा भी वेस्ट हो रहा है और हमको जो एक रिजल्ट, जो हमें एक आउटपुट चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा है। अब हम जो पॉलीमर्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक सूखे पाउडर फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। तो जो ड्राई पॉलीमर होते हैं, जो पाउडर वाले पॉलीमर होते हैं, उनको शेयरिंग यानी उनको एजिटेशन कम जरूरत होती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम लेते हैं फूलने के लिए, क्योंकि उनको पानी सोखना है फिर फूलेंगे। और जो लिक्विड पॉलीमर होते हैं, उनको क्या है, तोड़ने के लिए, शेयर के लिए ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा प्रेशर चाहिए। और उनको हाइड्रेट, क्योंकि वो लिक्विड होते हैं तो हाइड्रेटेड होते हैं, इसलिए हम उतना टाइम स्वेलिंग का नहीं देना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है कि एक प्रॉपर मिक्सिंग के लिए क्या जरूरी चीजें हैं। एक तो हमारा जो ड्रिलिंग फ्लूइड है वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर जब यूटिलाइज नहीं हो रहा तो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर यूटिलाइज हो रहा है तो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा पूरा होगा। और इसीलिए जो एक प्रॉपर मिक्सिंग या ड्रिलिंग फ्लूइड होगा तो हम एक परफॉर्मेंस इसका बढ़िया होगा। वो हमारा पाइप अच्छे से फ्लोट करेगा, जैसे बॉयसी रजत ने बोला था। फिल्टर के बोरहोल स्टेबलाइज होगा, उस कोलैप्स होने के चांसेस कम हैं। और जो कटिंग है वो सब बाहर आ रही है। ये सारी चीजें ही हमको चाहिए पाइपलाइन इंस्ट्रूमेंट। तो सब ये अगर हमने एक प्रॉपर मिक्स बनाया है, तभी ये सब हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे और हमारा पाइप आसानी के साथ खिंच के आएगा। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, बिगेस्ट बैंग फॉर योर बक, यानी कि हमने कम पैसे में अपना पूरा काम कर दिया। नहीं तो क्या होगा कि हमने सारी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करी, जल्दबाजी में पूरा बैग डाला, वो मिक्स नहीं हुआ, स्वेल नहीं हुआ और हमने पंप कर दिया, तो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, जो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा कम पैसे में अच्छे से काम हो। ना सिर्फ इससे क्या होगा कि मशीन के लोड होगा, वो लोड कम हो जाएगा। फ्लूइड प्रेशर, जो अब रजत ने बोला था कि फ्लूइड जहाँ पे बोर पे जो फ्लूइड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। रोटेशन प्रेशर अगर ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो रोटेशन प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमारे मशीन पे लोड आएगा। बेंटोनाइट में सैंड कंटेंट ज्यादा है, तो हमारे मड पंप की जो वॉल्व्स हैं, उनके पिस्टन कप्स हैं, वो सब जल्दी डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि हम एक तरह से रेगमाल रगड़ रहे हैं पंप के अंदर। सैंड रेगमाल का काम करता है, और जब हमने पंप कर रहे हैं हाई स्पीड से, तो क्या पिस्टन पे इफेक्ट करेगा, वो पिस्टन आपकी जल्दी घिसेंगे, मशीन पे लोड आएगा। अगर रोटेशन प्रेशर ज्यादा रहेगा तो कई बार होता है कि मशीन के जो पंप्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं जल्दी। तो जैसा कि निरंजन जी ने बोला था कि मशीन को 5,000 घंटे चलना है, तो 3,000 घंटे चलेगी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा
हमारे लिए फायदेमंद है और जरूरी है कि हम ये सब जानें, सीखें इसके बारे में। ये आज का जो हमारा छोटा सा एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है, तो वो ये कोशिश सिर्फ आपको एक जागरूक करना है। इसमें एक दिन में आपके प्रेजेंटेशन से आपको उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी कि हम लोग को चाहिए एक सक्सेसफुल पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की। हाँ, अगर आप जागरूक हो गए तो बहुत सारी मैटर पे हम, निरंजन जी की सोसाइटी, बहुत हम लोग सब मिल करके आपको एक अच्छे प्रैक्टिसेस, जो गुड प्रैक्टिसेस है वो उसके बारे में सिखाएंगे, जिससे आपका हर शॉट सक्सेसफुल शॉट हो। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले मिक्स एडिटिव्स इन राइट ऑर्डर। जो मैंने बोला था कि एक सबका एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है कि इससे पहले क्या ऐड करना चाहिए, उसके बाद क्या ऐड करना चाहिए, उसके बाद क्या ऐड करना चाहिए। वो अगर हम फॉलो करेंगे तो एक अच्छी ड्रिलिंग फ्लूइड तैयार हो जाएगी। और सही मात्रा में हमको एडिटिव डालना है अगर हमको अच्छे से सक्सेसफुली पाइप को इंस्टॉल करना है। और ड्रिलिंग फ्लूइड जैसे जैसे हम मशीन को यूज कर रहे हैं और पंप करते जा रहे हैं तो खाली होगा, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हर बार जो मैंने पहला मिक्स बनाया था वही मिक्स हर बार बने। ऐसा नहीं कि पहला मिक्स में हमको एक अच्छा बन गया, दूसरे बार में टैंक रिफिल कर रहे हैं तो पता चला उसके आधा ही रह गया, और तीसरे वाले में तो पता चला वो खत्म ही हो गया। तो ये सारी चीजें नहीं देनी है। और हमको एक बड़े पाइपलाइन के हिसाब से तो मेरा सजेशन ये है कि एक मिक्सिंग के लिए टैंक अलग रखें और पंपिंग के लिए एक टैंक अलग रखें, जिससे कि हमारा काम न रुके, सबसे बड़ी बात। और दूसरा कि हम हर वक्त एक सही मिक्स तैयार रहे ड्रिलिंग फ्लूइड में। और जैसे फिर उसके बाद एक छोटी सी टिप है कि पूरा सैग, चाहे वो बेंटोनाइट का हो, पॉलीमर का हो, मिक्सिंग हॉपर में एकदम से नहीं डालने का है, खोल करके डाला। उससे क्या होगा कि हमारा जो मिक्सिंग है प्रॉपर नहीं होगा, बेंटोनाइट या पॉलीमर टैंक के नीचे सेटल हो जाएगा, और पंप तो खाली सिर्फ समझ लीजिए एक तरह से चाय जा रही है, चाय जैसे कलर का होता है वैसे हो जाए, तो वो बेंटोनाइट मिक्स नहीं हो रहा है। बाकी अब जब सफाई होती है, कई बार हम लोगों ने साइट पे देखा भी है, जब मिक्सिंग यूनिट की सफाई होती है तो एक अच्छी खासी मोटी परत जमी होती है बेंटोनाइट की। तो वो यही कारण है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी या एक साथ डाल दिया। तो धीरे धीरे हर चीज डालनी है और सबको टाइम देना पड़ेगा और इसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक और मैं छोटी सी टिप दूंगा कि कई बार जो ड्राई पॉलीमर होते हैं, सूखे पॉलीमर जो पाउडर होते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर हमने नॉर्मल वेजिटेबल कुकिंग जो ऑयल जैसे खाना बनाते हैं वो अगर हमने डाल दिया तो वो बहुत जल्दी कम टाइम में डिस्पर्स हो जाते हैं। ये कुछ साइड फोटोग्राफ्स हैं और कुछ टेस्टिंग है। जैसे कि अब यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग सिस्टम है, और ये एक जो साहब हैं, ये एक जिसे बोलते हैं माश फनल, ये लेकर के विस्कोसिटी चेक कर रहे हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? एक हमारी थिकनेस होती है, ड्रिलिंग फ्लूइड कितना थिक है। अब वो अगर ज्यादा थिक हो जाएगा तो क्या होगा कि पंप अच्छे से नहीं होगा और वो पाइप बोरहोल में सही से नहीं जाएगा और पाइप भी सही से उसमें फ्लोट नहीं होगा। बहुत पतला होगा तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब वो बोरहोल को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। एक सबका एक विस्कोसिटी का लेवल है। आइडियल विस्कोसिटी 35 सेकेंड से 45 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन ग्राउंड कंडीशन, मतलब हर ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती है। लेकिन एक जो रेंज में आपको दे रहा हूँ 35 यानी 35 सेकेंड से 55 सेकेंड तक होनी चाहिए। और अगर हमें गाढ़ा मिल रहा है यानी कि हम बेंटोनाइट ज्यादा डाल रहे हैं, हमारा वेस्ट हो रहा है। अगर हम इसको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि गाढ़ा आ रहा है तो लोगों ने क्या किया, पानी कम डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। तो हमें ये भी देखना है इसके साथ साथ कि जेल स्ट्रेंथ,
कैरिंग कैपेसिटी जिसे बोलते हैं हम लोग कॉमन टर्म में, वो बराबर है। तो इसका एक छोटी सी साइड पे आप टेस्ट ये कर सकते हैं कि एक क्लीन ग्लास हो, पानी का ग्लास होगा आपका, उसमें आप ड्रिलिंग फ्लूइड ले लें। ये एक फोटो है मार्श फनल की प्रॉपर, कि कैसे दिखता है। इसमें हम बेंटोनाइट इसमें पोर करेंगे, नीचे से छेद बंद करेंगे, फिर ये खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो नोट करना है स्टॉप वॉच या मोबाइल की मदद से। तो वो 35 सेकेंड 45 सेकेंड कितना है वो बता देगा आपको। दूसरे कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जेल स्ट्रेंथ के, मड डेंसिटी के, ये सारी चीजें, टेस्ट किट आती है, वो होना जरूरी है बड़े पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के लिए। Sorry, can you talk about these things like I know that we as a Vermeer as a company we don't really make these equipment, but maybe for the attendee you can suggest which companies are into this so that they are aware about into these stuff. या ये कुछ टेस्टिंग मड टेस्ट किट्स वगैरह हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन ये हमारी एसोसिएट कंपनीज बनाती हैं, या हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको खरीद लें। और इसकी छोटी ट्रेनिंग हम लोग अपने साइट पे, या हो सकता है निरंजन जी के शेड्यूल में भी हो, और वो आपको सिखा सके कि इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे यूज करना है और क्यों ये यूज करना है। एक चीज तो है, सेफ्टी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब हम क्या बेंटोनाइट यूज कर रहे हैं, तो अगर हमने पीपीई, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले पीपीई, हमारा जैकेट हेलमेट वगैरह सब हैंडल कर, शूज, और भी एक पूरा सेट है, इनको आपको करना है। साथ साथ बेंटोनाइट एक, क्योंकि एक तरह से मिट्टी है, जब हम हैंडल करेंगे तो धूल उड़ेगी उसके बैक हैंडल से, तो वो हमारे लंग्स में जाएगा, तो वो हमारे लिए एक लेबर का लंग भी इम्पोर्टेंट है। तो हमको इस N95, आजकल कोरोना की वजह से तो सब मास्क से पूरे भली भांति परिचित हैं, लेकिन उससे पहले से हम लोग ये बोल रहे हैं कि सिखा रहे हैं कि हमेशा आपके लेबर जो बेंटोनाइट वगैरह हैंडल करते हैं वो ये इस तरह के मास्क पहने, इससे उनके लंग्स, उनके फेफड़े सही रहें और उनको कोई परेशानी ना हो। रजत ने बोला था कि सॉइल कंडीशन जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग है एक सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के लिए। सबसे पहले हमको जानना है, एक टेस्ट, सॉइल टेस्ट करवा लें जो साइट पे काम है। ये काम हमको मशीन ले जाने से बहुत पहले करना है, क्या तरीके की सॉइल है। उससे ना सिर्फ हमको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के बेंटोनाइट, किस तरह के पॉलीमर यूज करना है, बल्कि किस तरह की हमको टूलिंग यूज करनी है। क्या पता वो उसमें रॉक मिक्स है, क्या पता उसमें सैंड ज्यादा है। तो हर जगह हर चीज अलग होती है। यहाँ मैं बार बार एक बात को दोहरा दे रहा हूँ, और इसको मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि ग्राउंड कंडीशन कॉमन एक जगह नहीं रहेगी। या मान लीजिए आपने दिल्ली में काम किया, तो वो कल को वही चीज आपने प्लान कर ली चेन्नई के काम के लिए, तो वो गलत है। चेन्नई में सॉइल कंडीशन बिल्कुल अलग है दिल्ली के बनिस्बत, दिल्ली की सॉइल कंडीशन बिल्कुल अलग है कलकत्ता के बनिस्बत। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, सब प्लानिंग इसीलिए बहुत जरूरी है। फिर उसके हिसाब से हम, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमको बोर वॉल्यूम्स, यानी कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा कि 30 इंच का पाइप डालना है 500 मीटर के लिए, तो उसमें हमें कितना पानी लगेगा। तो वो सारी प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया, हाँ, ये नहीं होता कि ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। कई बार थोड़ा कम लगता है, कई बार तो थोड़ा पानी ज्यादा भी लग जाता है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो फिर भी एक हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमको कितना पानी चाहिए, कौन सा पानी चाहिए, कैसा है। और उसके बाद हमको प्लान में बहुत ही जरूरी चीज है कि हमारा पानी उतना अवेलेबल हो उस क्वांटिटी में,
और एक हमारा मिक्सिंग यूनिट उस तरह का हो हमारे पास जो उतनी पानी को हैंडल कर सके। हमारी जो मशीन की पंपिंग कैपेसिटी है, जो एक मान लीजिए 200 जीपीएम या 750 लीटर पर मिनट है, तो हमने मान लीजिए 2000 लीटर का मिक्सिंग यूनिट हमारे पास है, वो लगा दिया, तो वो 2-3 रॉड में ही खाली हो गया। पता चला फिर हम पानी का वेट कर रहे हैं, फिर मिक्सिंग का वेट कर रहे हैं, तो उस तरह से हमारा ना सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा बल्कि पैसा भी। वही चीज अगर हमने सब प्लान किया है, सारा मिक्सिंग यूनिट भी बढ़िया है, सब कुछ पानी भी टाइम से आ रहा है, सब कुछ है, तो हम हो सकता है जो शॉर्ट कंप्लीट होने में 5 दिन लगते हैं वो हमने 3 दिन में कर लिया, तो 2 दिन हमारे बच रहे हैं। वही 2 दिन इस तरह से महीने के हमने 10-15 दिन बचा लिए, तो करके तो हमने 2 दिन अलग क्रॉसिंग ज्यादा कर ली और हमारा मुनाफा ज्यादा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, हम एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल हर चीज को करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और हमारा एक इंडस्ट्री में नाम होगा कि हाँ ये लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और काम जल्दी फिनिश करते हैं, और ना सिर्फ ये काम करते हैं बल्कि सक्सेसफुली काम करते हैं। उनके शॉर्ट फेल के चांसेस बहुत कम हैं। मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या ड्रिल कर रहे हैं और सब कुछ। तो यही सारी चीजें हैं, आप छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपके एक तो नाम बढ़ेगा, दूसरा आपके जो सक्सेस रेट है वो चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाएंगे, सक्सेस रेट आपके बहुत हाई हो जाएंगे। रिसाइकलिंग एक सिस्टम है जो कि कई बार होता है कि जब बड़े क्रॉस पाइप डाल रहे होते हैं, बड़े या रॉक में डाल रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करना होता है। इतना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उतना पानी वेस्ट करें, तो हमें रिसाइकलिंग सिस्टम भी अपने अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है। उससे क्या होता है कि वो हमने जो भी एंट्री पिट और एग्जिट पिट से कलेक्ट किया है मड, वो रिसाइकलिंग सिस्टम में डालते हैं। वो क्या है, वो एक तरह से छन्नी है, उसमें बहुत सारे छन्नी लगेंगे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं जो कि मिट्टी को ड्रिलिंग फ्लूइड से सेपरेट कर लेते हैं, और वही ड्रिलिंग फ्लूइड हम फिर बार बार यूज कर सकते हैं अपने पंपिंग के लिए या ड्रिलिंग के लिए। तो रिसाइकलिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैं आप लोगों के लिए एक ओपिनियन पोल छोड़ देता हूं कि आप लोग अगर चाहें तो हम उसको एक अपने नेक्स्ट वेबिनार में पेश कर सकते हैं। Right. Thank you, Tash, for covering all the topics. This is so. Anybody? I mean, I Any know it's questions? yeah. Any questions there? Mr. Suman, do you have any questions? Okay. So, with that, I would have Rajat and Mr. Swaroop to summarize this one by one. Maybe Mr. Swaroop can start and then Rajat can take over. Yes. ऑलराइट, तो सबसे पहले ये है कि जो लोग सुन रहे थे, क्या उन लोगों को ये चीज अच्छी लगी कि उनको ड्रिलिंग फ्लूइड को देखना है या संभालना है? आई बिलीव एवरीबडी इज न्यूटेड, तो आप देखें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसकी जरूरत नहीं है, आप सोचते हैं या इसका आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो आप अपना छोटा सा नुकसान करते हैं। और ये है कि आपकी मशीन जो लंबा चलने वाली थी वो जल्दी बैठती है, एक। और दूसरा, अगर डैमेज होने वाला है तो वो डैमेज ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ने का मतलब होता है कि आप चीजों का नुकसान कर सकते हैं। अब एक सवाल है ये कि जो आदमी इन कामों को देखेगा, क्या उसके पास वो समझ है, वो चीजें जानता है या नहीं जानता है? मेरा आदमी जो मशीन चला रहा है, वो आदमी प्रोबेबली मशीन के सारे कंट्रोल जरूर जानता है, बट
थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत जिसको बोला जाए कि मटेरियल साइंस, थोड़ी बहुत प्रेशर एंड ऑल, विस्कोसिटी, इन सब की जानकारी अगर उसे नहीं है तो मेरा सजेशन होगा कि लेट हिम गो थ्रू दोस थिंग्स। एक जिसको बोला जाए कि एक नॉर्मल जो एजुकेशनल पॉइंट्स हैं वो सीखे, वो साइड पे ही सीखे। फॉर्मल अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो वो चीज सीख के कम से कम ये समझना शुरू करे कि उसको एक्चुअली एस्टिमेट कैसे करना है। हाउ डज ही एस्टिमेट दैट हाउ मच वाटर ही रिक्वायर्स। अब व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट वाटर। अगर आप बहुत ही अच्छा पीने के योग्य पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। And at the same time, if you use some water which is full of organic waste or which is full of soda or like calcium and other things, naturally that's not going to yield any result. तो इन दोनों के बीच में कहाँ बैलेंस आता है, इसकी समझ आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, स्पेशली आपके मशीन ऑपरेटर के अंदर। और वो आपको जानना जरूरी इसलिए भी है कि अगर आप पंप करते रहें और पानी आपका बहता रहे बाहर, तो फिर आप पानी कितनी बार लेके आएंगे। फिर आता है वो जब पानी लौट के आ रहा है तो क्या आप उसे सेपरेट करते हैं या यूं ही फेंक देते हैं। अगर आप यूं ही फेंक देते हैं तो होता यह है कि जो भी आसपास के लोग हैं जिनके घरों में वो पानी घुस रहा है या कूड़ा आ रहा है, वो नाराज होते हैं, उनके साथ में एक एक्रिमनी होती है। तो ये सारी चीजें आई बिलीव आपको तारीख ने कन्वे जरूर की हैं। इसको आप समझें और इसको आप आगे लगाने की कोशिश करें। ये जो प्रोग्राम वर्मियर ने किया, हम लोगों ने नहीं, वर्मियर ने जो किया, ये प्रोग्राम इस पूरे प्रोसेस की एक शुरुआत है। अगर आप साइंटिफिकली काम को करेंगे तो आप आगे निकल सकते हैं। अगर आप साइंटिफिकली नहीं करेंगे तो फिर यह तकदीर की बात है कि आप कामयाब हो गए, कामयाब नहीं हुए। और ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि आप नाकामयाब हों, क्योंकि अगर आप नाकामयाब होंगे तो ट्रेंचेस टेक्नोलॉजी की बदनामी होगी और उसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेंचेस टेक्नोलॉजी को भी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये लोकल मिस्टेक है, ये ओवरऑल मशीन या टेक्नोलॉजी की कमजोरी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं एचडीडी से, उनको रोकने के लिए भी इस तरीके की सारी समझ की जरूरत होती है। मेरी आप लोगों से यही वो है, विनती है कि आप लोग इस चीज को विचार करें और इसके हिसाब से आगे चलें। Believe you me, you'll be making more money, you'll be saving more money, which would be going for repair of mistakes. ये सारी चीजों को आप बचा सकेंगे। And with that, I would like to close my statements. Thank you very much. Thank you, sir. Rajat, any closing comments from your end? Yeah, thank you. Thanks to Tariq for touching a topic which generally people don't. Generally लोग mud mixing और इस सब के बारे में कभी बात नहीं करेंगे. They will only be talking about the machine and machine. And as correctly said by Niranjan sir, it is very important कि आप साइट पे एक बार जाके देखो कि जो हम ये बात कर रहे हैं ये सब कैसे हेल्पफुल है। Like I'll just take 2 more minutes. अब हम एक छोटा सा टॉपिक मिस कर गए थे। आप लोग एचडीडी से एसोसिएटेड हैं, आपने कभी सब लोगों ने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा फ्रैकआउट या ग्राउंड हीविंग। थोड़ा सा बताता हूँ बेसिकली होता क्या है कि जब आपका जो डाउनहोल प्रेशर है वो ओवरबर्डन से इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, ग्राउंड ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, फटना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्रेशर। नाउ as Niranjan sir very correctly said, we have to understand these things on a job site. So I as a DCI person will request you all कि अगर कोई भी आदमी साइट पे देखना चाहता है कि हाउ दिस फ्लूइड प्रेशर वर्क्स, सिंस वी हैव अ ट्रांसमीटर व्हिच measures the downhole fluid pressure, so we can show you on our system. हम सिस्टम में आपको दिखा सकते हैं कभी कैसे कोई साइट हो जहाँ पे फ्रैक आउट हो रहा हो and how the system, how the downhole fluid starts losing the pressure. So we can actually demonstrate this on a job site. So I'm sure Varma will be sharing our details with you. So anybody who actually wants to see a demonstration on a job site, you're most welcome. Please contact us. We'll be there with our equipment on a job site to show you how this fluid pressure transmitter that we have actually works out well on these ground conditions, especially for pipeline installations. Thank you all. Thank you very much for listening to us. Thank you, Rajat. With that, I think the participants don't have, like attendees do not have any questions. We do plan to have another webinar. Tariq touched upon the need for recycling of the drilling fluids while execution of LPD project. So we do plan to have another webinar for the recycling of the fluids. So we will send out an invite to all the attendees in maybe coming week. So keep looking for that email in your inbox and do join us for that webinar.
Thank you all for joining. I conclude the webinar here. Thank you, Aditya.